जी हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे जब सरहद पे कोई शहीद होता है तो हर एक देशवासी का कर्तव्य बन जाता है कि उनकी बहादुरी को, उनके शौर्य को हम याद रखें और सदैव याद करते जाएं। This session, ladies and gentlemen, is titled as the Kargil Gallantry of late Captain Manoj Pandey ji, PVC Param Veer Chakra, a human story. And as the author, we have Martyr's classmate and chronicler, Shri Pavan Mishra ji, who is going to be in conversation with Brigadier Sanjay Agrawal ji. मैं चाहूँगा हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे ऑर्डर और डिस्कशन का। Pavan Mishra ji is center head of Vidya Mandir classes Lucknow. He is a senior faculty for IIT NEET with experience of 20 long years. He is MSc Physics with NET CSIR. He is ex-physics faculty of Acharya Narendra Dev College, New Delhi, Delhi University. He is also the ex-general body member of Rajdhani College, Delhi University. His book is titled as The Hero of Batalik, which is the biography of late Captain Manoj Kumar Pandey ji. Pavan ji was amongst the top for this session. We are delighted to have the one and only Brigadier Sanjay Agrawal ji, who is also the founding member of Society for Culture and Environment. He is the former security advisor to the Ministry of Home Affairs, Government of India, advisor to Government of Seychelles, a country east of Africa, advisor to the National Highways Authority of India, and president of the Services Selection Board, Ministry of Defence, Government of India. He is also a master trainer in soft skills with ICAI, the Institute of Chartered Accountants of India. He speaks on the television on international geopolitics, security issues, and more. Also, you will be delighted to know that the author of the book and Brigadier Sanjay Agrawal ji both happen to be the schoolmates of Captain Manoj Pandey ji, and UP Sainik School Lucknow happens to be their common alma mater. We can never get a better pair to discuss about the bravery and chivalry of late Captain Manoj Pandey ji. I request the gentleman to please unveil the conversation. उपस्थित सभी मान्यवर, आप सबको यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मैं ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल, लेखक पवन मिश्रा जी, और जिसके ऊपर इन्होंने किताब लिखी है कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र, हम तीनों एक ही स्कूल के हैं। ये मुझसे स्कूल में 20 साल प्लस बाहर आए थे और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे अनुग्रह पे हमारे स्कूल के मुझसे भी सीनियर, मैं स्कूल में था 1970 से 74 तक, आज यहाँ उपस्थित हैं इसी रंगमहल में बहुत सारे लोग। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सिर्फ अपना नाम और कब से कब तक आप स्कूल में थे, 4-5 लोग जो मुझे दिख रहे हैं, ये बता दीजिए। त्यागी सर, प्लीज स्टार्ट। वो बात में आई थिंक सबसे वरिष्ठ शायद मैं ही हूँ। मैंने स्कूल ज्वाइन किया था 1962 में। अपना नाम बता दें प्लीज। मेरा कर्नल महेंद्र कुमार त्यागी। कर्नल महेंद्र कुमार त्यागी 1962 में, और हमारे स्कूल के नाम को कैप्टन मनोज पांडे से प्रीफिक्स किया गया जब इनको परमवीर चक्र मिल गया। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। 1962 से 1967। यस। MS खरे 1969 to 74। और आप भोपाल के ही परमानेंट रहने वाले हैं और यहाँ के शासन का एक हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। आई एम ग्रुप कैप्टन AK उपाध्याय, presently serving as director NCC for Madhya Pradesh and Chhattisgarh. I was in school from 1980 to 1984. Thank you, Anil. Good evening, everybody. I am Sudhanshu Nautiyal, school number 882. I was there from 79 to 85, and presently I am DIG SSB Academy Bhopal. Thank you. Excellent, Nautiyal. Good evening, everyone. I am
to 73. Thank you. No, you were in school from 1969 till 73. Yes. So with that as a background, let me start. Our author, how much time do you think he took to write this book? बड़े तफसील से लिखी है इन्होंने, 10 साल। मन हट गया, कोई समस्याएं आ गई, 10 साल। और इनको प्रेरणा अल्टीमेटली किसने दी? कैप्टन मनोज पांडे की माँ ने, जिन्होंने अपना बेटा खोया था। और जब उन्होंने पूछा इनसे 8-9 साल बाद कि बेटा तुम वो किताब लिख रहे थे, कहाँ पहुँचे, तब इनके अंदर वो एक जुनून जागा और उन्होंने वो किताब लिखी। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इसके कंटेंट्स पेज में अगर आप देखें तो 30 पन्नों में केवल पत्रावली है। ये दोनों क्लासमेट्स थे, कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र और पवन मिश्रा। तो 1993 से अगले 4-5 साल जो इनकी चिट्ठियां चली, दैट वाज द डेज ऑफ स्नेल मेल, लेडीज एंड जेंटलमैन। देयर वाज नो व्हाट्सएप एंड नो इंटरनेट। और वो कहीं बर्फाने इलाके में बैठा हुआ इनको चिट्ठी लिख रहा है, इंक्लूडिंग कि यार उस लड़की से शादी होनी थी, ये हो गया, वो सब इन्होंने किताब में चिट्ठियों की फोटो और ट्रांसक्रिप्ट दी है। दिस इज अ वेरी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी जो कि आज के यूथ को, और मैं इनसे वही सवाल जवाब करूंगा, क्या हुआ। और इस किताब के अंदर उन्होंने शुरू में ही जो एक्चुअल असॉल्ट था उसका विवरण किया है। उसमें एक चीज उन्होंने लिखी है जो कि सिविलियन दिमाग में अनोखी लगती है। हम कहा अच्छा हाँ ये तो इनको अनोखी लगेगी। क्या? हम लोग रूटीनली, आई हैव ऑल्सो बीन डिक्लेयर्ड डेड इन वॉर, आई हैव बीन शॉट नंबर ऑफ टाइम्स, आई एम अ वॉर वुंडेड, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी बीवी का सिंदूर अभी तक बरकरार है। द पॉइंट इज वी हैव टू मूव टू गेट द फायर ऑन टू अस, टू गेट द एनिमी टू रिवील हिज पोजिशन सो दैट वी कैन फायर एंड किल हिम। दिस इज समथिंग Pawan, as a civilian author, has rightly brought out in his book. Now, I want to ask you, Pawan, you will cover it in your unique way. पहले तो ऑडियंस को ये बताइए, कैप्टन मनोज पांडे के व्यक्ति को, flesh the skeleton. What was he? Was he a scholar? Was he a warrior? Was he a sportsman? Was he hot-headed? Or was he samtal, sheetal swabhav? Was he religious? Was he spiritual? कैप्टन मनोज पांडे, जो हम लोग उनको नहीं जानते, उनसे जानकारी कराइए ऑडियंस की। Thank you, sir. Thank you, Agarwal sir. And thank you all the distinguished guests. और सब लोग आप लोग यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन मनोज कुमार पांडे को मैं जब मिला, वी वर इन क्लास 7। तो क्लास 7 में आप समझते हैं एज क्या होती है हमारी, 12-13 साल के आसपास होती है। उस समय से लेकर के 24 ईयर्स में कारगिल वॉर फेस किया उसने। ये इम्पॉर्टेंट जो टीन एज ईयर्स हैं कि 13 साल से 24 साल के बीच का, 87 to 99 वी वर टुगेदर, और 6 साल तो हम लोग सैनिक स्कूल में साथ रहे। रिगार्डिंग द पर्सनैलिटी ऑफ मनोज पांडे, आई टेल यू, he was best scholar of my batch। अब आप देखिए कि सैनिक स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो पूरे यूपी से 70 लोग 50 लोग आते हैं, उनमें भी वो बेस्ट स्कॉलर था। he was best sportsman also of my batch, बेस्ट स्पोर्ट्समैन भी था, बेस्ट स्कॉलर भी था, and he was also one of the best all-rounder। he could play football, cricket, badminton, hockey, table tennis, कैरम, वो प्लेइंग कार्ड्स, कुछ भी खिलवा लो, 2 दिन में सीख जाता था। दैट टाइप ऑफ वेरी रेयर टैलेंट आई हैव सीन इन माई लाइफ। आई कुड नॉट सी मोर टैलेंटेड दैन हिम, एंड व्हाट आई कुड गेट आउट ऑफ हिम जस्ट टू ट्राई टू कॉपी। मैं उसको कॉपी करके थोड़ा सा मैं भी इम्प्रूव कर गया, मुझे लगा। तो वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। नेक्स्ट कमिंग टू कि क्या वो स्ट्रॉन्ग हेडेड था या डोसाइल सा था, उसकी पर्सनैलिटी तो मैं बताऊं कि वो इट्स लाइक दैट कि इट इज़ बोथ। हम लोग जब 7th 8th में थे तो हमारी जो हॉस्टल होता था, जैसे सर लोग यहाँ पे, तो वहाँ पे एक टंडन हाउस हुआ करता था,
उसमें अंदर ना लॉन्ग कॉरिडोर था फॉर दी वॉशरूम, अंदर जाके आपका टॉयलेटरीज एंड वो होते थे। हम लोग 8th क्लास में बच्चा क्या 12-13 साल उम्र होती है, तो उसमें एक मैडम हेल्डा की कहानी आती थी कि वो अभी नहीं है लाइफ, तो भूत बन चुकी हैं, वो आके पकड़ लेती हैं। हम सब लोग कभी कभी जाते थे ना, कोई अंदर जा रहा है जोर से बोलते थे हेल्डा मैम आ गई, तो बच्चे दौड़ के वापस आते थे। दे कुड नॉट डेयर टू अटेंड दैट टॉयलेटरीज एज सकता, तो हम लोग डर के भाग आते थे। एक बार हमने मनोज पांडे को डरा दिया, वो टॉयलेट करने नहीं गया, मैंने वापस आ गया, मैं नहीं जाऊँगा, हेल्डा मैम पकड़ लेंगे। तो डर एंड दैट फैक्टर वॉज देयर, तो वो चीज़ है। और ये घटना मैं बता रहा हूँ 89 की, और 99 में गेटिंग परमवीर चक्र, तो दैट एस्पेक्ट वॉज देयर। फिर मैं कहता हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग हेडेड एंड इसमें कि गरम दल का था या नरम दल का था। तो हम लोग 9th-10th में जैसे हमारे हिस्ट्री के जो टीचर्स थे वो स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ बताते थे। उन कहानियों में कि एक्सट्रीमिस्ट होते थे, उनका अपना एक अप्रोच था, लाइक भगत सिंह एंड अदर्स, चंद्रशेखर आजाद। फिर लिबरल्स भी थे, इनका कि नॉन वायलेंस वाली बात थी। तो हम लोग जो है ना बीइंग टीनेज में हम लोग एक्सट्रीमिस्ट को ज़्यादा फॉलो करते थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाइक दैट। बट ही फॉलोड गांधी जी। पता नहीं तुम लोग नहीं समझ पाते हो, तो हम लोग उसको काफ़ी वो कर देते थे, भाई तुम्हें आउट ऑफ दैट। सब लोग 10 लोग ये कहते थे कि नहीं हम एक्सट्रीमिस्ट को फॉलो कर रहे हैं। वो कहा नहीं, मैं गांधी जी वॉज ग्रेट। हम कहते क्यों, तुमको ऐसा कैसे लगता है? कहा जब तुम थोड़े और बड़े हो गए तो पता चलेगा। तो यूज टू टेल अस कि तुम्हारे बच्चे, शायद वो मेरी उसकी जो थॉट प्रोसेस था हम सबसे शायद थोड़ा आगे था, और हम बाद में रियलाइज भी किए हाँ यार गांधी वॉज ग्रेट। तो वो ऐसी चीज़ें उसके अंदर थी। रिगार्डिंग धर्म की बात मैं कह दूँ थी, हम लोग सही स्कूल में जानते हैं सर, तो वहाँ पे एक मंदिर भी था आगे। तो ऑल 6 years ही वेंट टू दैट मंदिर, एंड एवरी ट्यूसडे मंगलवार को वो हनुमान मंदिर जाता था। मैं नहीं जाता था बट ही यूज्ड टू गो। तो रिलीजियस भी था, और ये सारी पर्सनैलिटी उसमें थी। ही वॉज ए कंप्लीट पर्सनैलिटी, ऑल इन वन। मैंने कि मैं कहा था कैरम भी खेलता था ना, तो वो राइट हैंड से बहुत अच्छा खेला, लेफ्ट हैंड से भी अच्छा खेल सकता था। ईटी वाला भी टेबल टेनिस भी खेलता था, तो राइट हैंड से को बच्चे खेलते हैं तो लेफ्ट से भी खेल लेता था, इक्वली गुड। मैंने दैट टैलेंट इज रियली वेरी रेयर टू सी एंड फाइंड। ही वाज दैट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। बहुत बढ़िया। ये बताइए, आपने उनके वो भूत आ जाएगा नहीं गया। इन द आर्मी वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, and let me tell you, after being into all hot spots, and as I told you, into the thick of things, we feel fear. We are taught to overcome fear. ये हमारे प्रशिक्षण का एक अभिन्न अंग है कि अपने मन के डर के ऊपर विजय प्राप्त करना। प्रशिक्षण से, ट्रेनिंग से, अपने साथियों संबंधियों के सामने अपनी लाज रखना और उनकी जान सलामती की चिंता रखना, और अपनी पलटन के नाम से। These are the standard techniques or tools used to motivate a soldier like me to go in the face of certain death. मनोज के चक्कर में इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर मनोज को ये जो आपने कहा कि डेथ, और ये मैं बताऊं हमारे ना बड़े स्ट्रॉन्ग डिस्कशन होते थे कि जब वो एनडीए चला गया, आई कुड नॉट ज्वाइन आर्मी, दो आई क्वालिफाइड बट आई एम मेंटली ड्रॉप आउट। मनोज पांडे गॉट AIR 50, उसकी 50वीं रैंक थी एनडीए में। तो जब वो एनडीए का, तो मैं देखा नाउ इज गेटिंग मोर इनटू पैट्रियोटिक फीलिंग, क्योंकि वो टैलेंटेड था, दिमाग था, वो IIT के लिए भी करता तो चला ही गया होता, इंजीनियरिंग कॉलेज ही कुड हैव ज्वाइन, लेकिन उसने एनडीए को ही ध्यान में रखा। और जैसे जैसे ट्रेनिंग होती जा रही थी ना, तो उसकी दुनियादारी थोड़ी कम होती गई। आई हैव सीन कि उसका अंदर पेट्रियोटिज्म ज़्यादा आ रहा है, देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, ऐसा हमेशा आता था। आई केप्ट ऑन जस्ट सेइंग टू हिम, वार्निंग हिम लाइक दैट कि बेटा ऐसा मत करो, थोड़ा बहुत ईमानदार हो, दैट इज एनफ टू सर्व द नेशन। हम ईमानदार हैं, हम खुद गलत नहीं कर रहे हैं, जान देने वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे डिस्कशन हमारे उसके कभी कभी ना पूरी रात चलते थे कि क्या इज इट वर्थ इट, इंडिया इज वर्थ इट कि हम इसके लिए जान दें। वो सब जानता था कि इंडिया में करप्शन है, पॉलिटिक्स है, ये चीज़ें हैं, सब कुछ गलत है, लेकिन हमेशा उसी को डिफेंड करता था कि नहीं बात आएगी तो मैं जान दे दूंगा। मैं क्या क्यों? कहा जानते हो मैं नहीं रहूँगा ना, तो मेरे पेरेंट्स का ख्याल मेरी आर्मी मुझसे ज़्यादा करेगी। तो दैट थिंग ही है।
एंड ही वाज अ ग्रेट प्लानर, ही वाज अ ग्रेट प्लानर। प्लानर इन द सेंस देखिए कि वो IMA में जो लोग जाते हैं, IMA में यू हैव टू फिल द 3 choices फॉर द आर्मी कि आप क्या चॉइसेस भरना चाहते हैं। देयर ऑल द 3 choices he put it infantry, फर्स्ट choice 1, choice 2, choice 3, all the 3 infantry। उसने इन्फेंट्री के अलावा कोई चॉइस रखा ही नहीं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ही वाज इन द रैंक 22। अगर किसी के IMA पास आउट पे अगर रैंक 22 आ रही है तो ही कुड गेट अदर सॉफ्ट एरियाज आल्सो, सिग्नल्स है, इंजीनियरिंग है, समथिंग लाइक दैट आल्सो, बट ही केप्ट दैट थिंग, ही वाज वेरी क्लियर। दूसरी चीज बताया कि जो प्लानर की बात है कि वंस वी आर अपियरिंग फॉर SSB के लिए, जब हम 12th के बाद NDA रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, SSB के लिए जाते हैं, SSB में भी kept on discussing the things कि भाई तुमने इस क्वेश्चन में क्या लिखा, इस क्वेश्चन में क्या लिखा, तो you have to explain yourself. There in that one thing is there कि you have to mention what's aim of a life. हम लोग डिस्कस किए, जैसे मैंने लिखा था कि to be a army officer, कोई लिखा था to be class 1 officer, to be good human being. It is the story of 1993, real fact. उसने लिखा था I want to get Paramveer Chakra. कब लिख दिया? In the month January 1993, he written in that self declaration, I want to get Paramveer Chakra. Kargil war is happening in 1999. तो पता नहीं उसकी प्लानिंग थी या क्या अप्रोच था कि he joined the army and he got that thing. तो अगर उसकी सारी चीज़ों को हम देखें कि ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन टच जो आता है, तो ये दुनियादारी जो होती है, सब कुछ उसको पता था। Even he took this गोरखा राइफल्स as his regiment, गोरखा को प्रीफर किया बेस्ट टू इन्फेंट्री में ही। ये कॉज के पीछे फॉलो अप उसका था कि लखनऊ जो है गोरखा राइफल्स का रेजिमेंटल सेंटर है। कहा अगर मैं ना नहीं रहा तो मेरे पेरेंट्स के लिए ना मेरी रेजिमेंट विल टेक केयर, उनके डे टू डे एक्टिविटीज में खाना पीना या उनके जो फौजी पेंशन या जो भी होती है, पता नहीं क्या उसके प्लान में था। समटाइम आई फील है कि उसका जो सिक्स सेंस होता है, सबकॉन्शियस माइंड वाज फार अहेड ऑफ अस इन द थॉट प्रोसेस एंड लाइक दैट। ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। मैथ्स के क्वेश्चंस वो ऐसे कर लेता था कि हम लोग कोई आधे घंटे कोई क्वेश्चन करते थे वो 2 मिनट में कर लेता था। तो हिज फेवरेट सब्जेक्ट वाज मैथ्स। तो इन सब चीज़ों के साथ भी, सारी चीज़ों को जानते हुए भी, ही टुक द चांस and serve the nation in the best possible way. Yes. इसी में मैं बता दूं, भारतीय सेना में एक प्रथा है, जब हम कोई भी रेजिमेंट ज्वाइन करते हैं तो हम उस रेजिमेंट के ट्रूप्स की भाषा सीखते हैं। तो जो गुरखा रेजिमेंट ज्वाइन करेगा वो गुरखाली सीखेगा, चाहे वो केरला का हो, कहीं का हो। तो आज भी मुझे कुमाऊनी गीत याद है क्योंकि मैं कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ। The point is, what were last words जब उसको पैर में लगा, हाथ में लगा और वो बढ़ता रहा, अपने जवानों को आगे लाता रहा। He died finally, he got a burst on his head. इतने लगने के बाद अगर वो बैठ जाता और बाकी लोग आगे जाते तो बहुत अच्छा होता और बिल्कुल सही भी होता, लेकिन वो आगे गया, माथे में खाई गोली, बर्स्ट। मरते वक्त उसके लास्ट शब्द क्या थे? न छोड़ो, विच इन गोरखाली मीन्स लीव नो एनिमी। मैं 2 चीजें बता रहा हूं इससे आपको। एक, गोरखाली जो कि उसकी मातृभाषा नहीं है, मरते दम पे वो उभर के आई। जवानों से संबंध कितना घनिष्ठ और गहरा है। दूसरी, फोकस्ड ऑन गोल अकम्प्लिशमेंट। मेरा लक्ष्य ये है, हमारे साहित्य में कहानी है ना, तुम्हें क्या दिखता है? चिड़िया की आंख, है ना, सबने पढ़ी होगी, ना छोड़ो। एंड दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आई हैव सीन, दे मोटिवेट पीपल अ लॉट। कुमाऊनीज बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, तो आई हैड सेड हमने पाकिस्तान के कमांडोज की फोर्स कैप्चर करिए, पोस्ट अटैक आएगा और मैं तो यहीं मरूंगा। और जो अगर कोई पीछे भागा, कुमाऊनीज आर वेरी सुपरस्टिशियस, मेरा भूत जिंदगी भर तुम्हें जीने नहीं देगा। That was my way of ensuring, because I was 1 + 8, 9 people at 20,000 feet high in Siachen. Anyway, back to ना छोड़ो। Now, किताब में आपने 3 चैप्टर दिए हैं, उसमें आपने उनके पर्सनल डायरी के ग्लिम्पसेस दिए हैं,
उनकी माताजी ने जब इनके अनुरोध पे कुछ लिखा, उसकी बहन ने कुछ लिखा, तो सवाल ये उठता है कि उसकी फैमिली में, वैसे तो पूछना बहुत शायद सही नहीं होगा, वो किसको ज़्यादा चाहता था या उसको कौन ज़्यादा चाहता था, क्या इस विषय पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे? यस सर, इन द फैमिली ही वाज वेरी क्लोज टू हिज मदर, और इन दोनों की पर्सनालिटी भी मैंने देखा कि काफ़ी एक सिमिलर सी थी। और इवन जब ये कारगिल वॉर होता है, इसको जो गोली लगती है, तो मदर को एहसास हो चुका था कि शायद माई सन इज़ नॉट इन गुड पोजिशन, और उसको शायद कुछ हादसा से हुआ है। तो एक सिक्स सेंस तो उनके पास था। और जैसे कि मनोज पांडे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से रहे, और उनके पिताजी की पहले नॉर्मल पान की शॉप थी, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। बट ही वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो अब देखिए क्लास 6 में ही गॉट दी स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप के पैसे से उसने पढ़ा। और घर की जो सारी कंडीशंस होती हैं कि अपने पिताजी को, फादर को सपोर्ट करना, यू नो कि इन क्लास 8 उसको जो यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती थी, अपने फादर के लिए उसने क्लास 8 में बाइसिकल खरीद के उनको गिफ्ट दी थी। तो वो तभी से ही उसके अंदर ये था कि हमको सपोर्ट करना है फैमिली को, या अपना एक जो रोल होता है। मतलब फादर के लिए भी उसका ये था कि हाँ मेरे फादर बहुत हार्ड वर्किंग, उनको सपोर्ट करना है। तो इस तरह से उसने फादर को भी, फैमिली को भी सपोर्ट किया। बट जहाँ पे होता है ना कि दिल मिलने वाली बात है, या जहाँ पे की है किससे ज़्यादा ट्यून्ड था, तो वो मदर से ही था। और मदर उनकी, हम लोग अक्सर मिलते थे, बातचीत होती थी। आफ्टर द कारगिल वॉर ऑल्सो आई ऑलवेज फ्रीक्वेंटली विजिट टू हिज हाउस। मदर की अभी लास्ट अप्रैल 2021 में डेथ हुई ड्यू टू कैंसर। तो उनको ये जो प्रॉब्लम आई उस भी की बहुत ज़्यादा सोचती थी उसके बारे में, हमेशा उनके लिए बातचीत करते रहती थी। तो एक उनका जो अटैचमेंट था वो मदर से ही था मुझको। जी देखिए, ये चरित्र, ये व्यक्ति और उस व्यक्ति का बेस्ट फ्रेंड जिसने ये किताब लिखी है, ये एक मौका है आप लोगों को सवाल पूछने का। और इसी के लिए मैं अपनी चीज़ संक्षिप्त में रखते हुए लेखक की वाणी आपके सवालों के उससे उजागर करना चाहूँगा, तो भरपूर सवाल पूछेगा। मेरा लास्ट सवाल, कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र के जीवन से हमारे नवयुवकों, नवयुवतियों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? What lessons should they draw for their lives from कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र? सर उसकी बायोग्राफी को जैसे हमने पढ़ा, तो जैसे कि मैं तो उसको देख के फॉलो किया तो मुझे लगा आई अचीव सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ आई कुड नॉट हैव गॉट। और कोई भी उसके बारे में पढ़ रहा है तो मैं पहले बताया था कि ही वाज वेरी टैलेंटेड। आपको हर एक रीडर को ना अलग अलग एक्सपेक्ट मिलेंगे। किसी एक से बोला तो मैं कह रहा कि मैंने तो टाइम मैनेजमेंट सीखा, कोई अच्छी प्लानिंग सीखता है, कोई टाइम मैनेजमेंट सीखता है, उसका लेटर्स आप देखेगा लगेगा कितनी अच्छी हैंड राइटिंग है। कोई ये भी सीख सकता है कि टफेस्ट ऑफ द कंडीशन में, आप उसकी जो लास्ट लेटर की बात करें तो टफेस्ट ऑफ द कंडीशन, पहाड़ से वहाँ पे कोई टेबल नहीं लगी है आपको लेटर लिखने के लिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग्स में चीज़ें लिखता है। तो उसकी पर्सनैलिटी में सब कुछ था। मतलब कि अब आपका होता है कि हम उसमें से क्या ले पाते हैं। तो आप देखो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल भी उसके लिए है, कुछ भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं था। He would have done anything। जैसे हम लोग कभी सोचते थे कि ये तुमने कैसे कर लिया। मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि वो नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली बात पे कि इन 10th एंड 11th वी वर हैविंग दिस वॉलीबॉल मैच। तो हम लोग एक साइड में वॉलीबॉल में एक साइड में 6 लोग होते हैं, दोनों टीम में 6 लोग होते हैं। तो हमारी साइड में उस दिन प्लेयर्स कम थे तो हम लोग 5 लोग थे और मनोज की साइड में 3 लोग थे। तो 5 वर्सेस 3, क्योंकि वो अच्छा खेलता था तो उसको 3 से ही खेल रहा था और 5 वर्सेस 3 में गेम चल रहा था। हम लोग 5 थे तो हम लोग उसको हरा दे रहे थे, क्योंकि बॉल उसको नहीं देते थे, बाकी 2 को देते थे जहाँ पे उसको ड्रॉप करा सके। अब मनोज पांडे थोड़ा फ्रस्ट्रेट होना शुरू हुआ कि यार ये क्या है, ये लोग तो मुझे एस्केप मार रहे हैं। उसने कहा ना दोनों हट जाओ, बाकी 2 को भी हटा दिया, कहा नाउ आई विल प्ले विद ऑल ऑफ यू। तो जब उसने ये किया ना तो हम लोग खुद ही बैटिंग छोड़ दिए, भैया तुम नहा दो। तो ही वॉज लाइक दैट कि उसका जो चैलेंज लेने का लेवल ही अलग होता था और माइंडसेट इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है। और जैसे आपको बताऊं कि
आपने ये वैष्णो देवी जो हम लोग जाते हैं, वैष्णो देवी अगर किसी ने वॉक करके गए हो नीचे से कटरा से ऊपर तक और वापस आए हो तो जानते हैं वो वैष्णो देवी जाना और आना पूरा ये कंप्लीटेड इन क्लोज टू 5 to 6 आवर्स, गया भी आ भी गया। तो उसकी जो फिजिकल फिटनेस थी वो भी अलग लेवल की थी। वो जब सियाचिन गया, सियाचिन में उसकी पोस्टिंग रही। सियाचिन में टफेस्ट ऑफ द पोस्ट है, पहलवान पोस्ट है। तो पहलवान पोस्ट उसने मांगी थी अपने लिए। पहलवान पोस्ट जैसे सियाचिन में लोग जाते हैं, सर जैसे जानते होंगे कि वहाँ पर लोग 4 घंटे एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहते हैं, 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं रहना चाहते हैं। ही स्टेड देयर 1 month एक्स्ट्रा, खुद ऑफर किया, वहाँ पे जाके रुका। तो मतलब उसके डेयर डेविल भी था, टफनेस भी थी। इवन कारगिल में जब सियाचिन में गया है तो वहाँ पे उसने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जिससे कि लॉजिस्टिक मतलब सामान को जल्दी से ऊपर ले जाना, पुली वगैरह बना करके ऐसा बना दिया था कि उसने सियाचिन में इतना अच्छा काम किया था। हिज नेम वाज रिकमेंडेड फॉर दिस शौर्य चक्र एंड ऑल ऑलरेडी बिफोर द कारगिल आल्सो, मैंने कि वो इतना अच्छा किया था क्योंकि उसकी उनकी ट्रूप जो है अप्रैल में वापस आई थी सियाचिन टू श्रीनगर। नाउ दे वर गोइंग टुवर्ड्स पुणे उनका पीस पोस्टिंग आ चुका था। बट इन दैट इन बिटवीन टाइम उसने सियाचिन में पोस्टिंग ली और ये सब भी काम किए थे। तो अगर उसके लाइफ की कोई भी प्रोफाइल आप देखेंगे तो किसी को लगेगा कि बहुत रिलीजियस भी था, बहुत टैलेंटेड भी है, स्कॉलर भी है, मैथमेटिक्स है, ऑलराउंडर है, एवरीथिंग इज देयर, इमोशंस है, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर आप उस बुक को पढ़ें उसकी पर्सनालिटी को कैसे भी जाने तो यू विल हैव समथिंग। यानी बहुमुखी चरित्र और व्यक्तित्व, जिसको जिस अंश से प्रेरणा लेनी है ले सकता है। अब समय है आप लोगों के प्रश्नों का। यस प्लीज। मेरा क्वेश्चन सर आपसे ये है, एक माइक दें इनको प्लीज। कृपया अपना नाम बता दें। सर मेरा नाम हर्षवर्धन शाह है। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जैसे अपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर बुक लिखी, तो आपने उनकी लाइफ से उनके जाने के बाद कभी ऐसा हो कि उनकी लाइफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसी चीजें जो आपकी लाइफ में बहुत बार हुई और आपको लगा कि मेरा फ्रेंड होना चाहिए था मेरे पास? इनफैक्ट आप जो कह रहे हो कि वो फ्रेंड हमारे पास होना चाहिए था, तो ये बहुत राइट है कि आई मिस्ड हिम अ लॉट इन द सेंस कि क्योंकि आप हॉस्टल लाइफ में सैनिक स्कूल में हॉस्टल लाइफ में साथ रहते हो 24 घंटे, इसके साथ आप 24 घंटे 5-6 साल लगातार रहे हो। टीनेज टाइम में 13 ईयर्स 18 ईयर्स तक अचानक वो थोड़ा दूर चला जाए, फिर अपनी ट्रेनिंग में उसके बाद नहीं भी रहे लाइफ में, तो मिसिंग पार्ट बहुत है। और उसी मिसिंग की वजह से मैंने ये बुक लिखी, क्योंकि हर बार उसको मिस करना, तो मिस करने को ध्यान में रखते हुए ये बुक लिखी। और जब जब मिस हुआ तो तभी उसको लिखा। और 10 साल क्यों लगे? क्योंकि आई वॉज ऑल्सो स्टार्टिंग माई कैरियर। जैसे आप देखिए 24 साल में उसकी कारगिल वार हो चुका था, 24 साल में हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे थे सिविल लाइफ में टू हैव अ गुड कैरियर लाइक दैट। तो मैं उसमें एमएससी कर रहा था, उसके बाद हमने नेट जीआरएफ किया, फिर धीरे धीरे 2002 तक जाके मैं सेटल हुआ। इनिशियल जो आपकी जॉब होती है उसमें भी आपको फाइट करना होता है, तो उससे समय कुछ मिलता था तो मैं लिखता था। और मम्मी ने जैसे एक मोटिवेशन दिया था कि आप इनके ऊपर बायोग्राफी लिखो, तो मैं एक्चुअली आंटी जी को ऐसे बताया, क्योंकि कुछ कुछ छोटे छोटे लीफलेट्स कुछ लोग लिख के देते थे 10 पेज का 5 पेज का मनोज पांडे की लाइफ के बारे में। तो उसमें कुछ लोग मुझसे पूछते, तो मुझे लगा कि मैं तो इनसे अच्छा भी लिख सकता हूँ, बिकॉज आई हैव सो मच एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन। आई स्टार्टेड कलेक्टिंग दोज थिंग्स, और जब जब लगा जैसे जैसे मिला टिट्स एंड बिट्स में आई केप्ट ऑन राइटिंग। और उसमें भी एक मोटिवेशन आता था कि जनरली मैंने बुक कब लिखी, 11 बजे से 1 बजे के बीच में, रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में, जब सब लोग सो जाते थे, मुझे नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आती तो किताब ये लिखता था, उससे बड़ा अच्छा लगता था, मोटिवेट फील होता था, हाँ यार। और जब लिखता था तो बहुत मोटिवेशन आता था कि लगता था कि आई एम टॉकिंग टू हिम, और कुछ न कुछ उससे मोटिवेशन आए। तो मिसिंग पार्ट तो रहा, और मिसिंग के साथ ही जब मैंने बुक लिख दी, बताऊँ टू बी वेरी फ्रैंक, जब बुक लिख दी तो मिसिंग वाला पार्ट थोड़ा हट गया। लगा कि हाँ यार एक सही चीज़ उसको होता ना कि मुझे भी शांति मिल गई, उसको भी शांति मिल गई, और चीज़ें हुई। देखिए पवन जी की ये किताब 2015 में छपी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। इसके कुछ कॉपीज यहाँ पर भी ऑथर्स लाउंज के पास हैं। आगे सवाल जी, आप बताएं सर। एक अच्छा आप पूछ लीजिए, उसके बाद आपको माइक दीजिएगा, उसके बाद आपको। ओके। मेरा नाम राजेश कुमार दुबे है। मैंने भारतीय वायुसेना में पैराट्रूपर पर 40 साल रहा हूँ। आई वॉज इन एयरफोर्स फॉर 40 ईयर्स।
अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, सब 12वीं क्लास के। तो हम ये सोचते हैं कि सेवा का मतलब ये नहीं कि हम कोई बहुत बड़ा, जो अपने लेवल में जो कुछ कर सकते करना चाहिए। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि ये जो मनोज पांडे जी के कैरेक्टर है, हम इसको 12th की क्लास में मध्य प्रदेश बोर्ड से हमारी यदि संस्था रिकमेंड करे, सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो 12th के सिलेबस में और एनसीसी में कंपलसरी दिस लेसन शुड बी देयर, सो दैट दे विल लर्न। बच्चे जो मोटिवेट हों, इससे बड़ा कोई मोटिवेशनल लेवल मुझे कुछ लगता नहीं कुछ है। उनके जीवन का हर एक पहलू बहुत रोचक है और बहुत ही बच्चों को प्रेरणादायक है। तो यदि प्रयास किया जाए तो ये बहुत एक अच्छी स्थिति होगी। यदि आप भी थोड़ा प्रयास करें तो बस इतना मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। थैंक यू सर। इसमें मैं बताऊंगा आपको कि पीवीसीज पे उनकी लाइफ पे एक चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक में इनकॉर्पोरेट किया गया है, एंड इट इज इन द प्रोसेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक है, इस सरकार का है कि पीवीसीज की लाइफ को एनसीईआरटी बुक में डाला जाएगा। किस स्टैंडर्ड में कहाँ पे है वो तो मुझे नहीं पता, बट इट हैज बीन डन और वो अंदर प्रोसेस आ चुका है। जी आप बताएं। हेलो सर, हेलो एवरीवन। सो माय क्वेश्चन इज, नहीं, अपना नाम और परिचय दे दें प्लीज। माय नेम इज अमन एंड आई एम फ्रॉम रीवा। आई एम डूइंग अमन फ्रॉम रीवा, यस। So my question is to you, sir. Are people like Captain Manoj Pandey born or are they made? देखिए, दे आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हमारा इतिहास, हमारे कल्चर बोलता है संस्कार और प्रारब्ध, तो वो तो हो गया बॉर्न का हिस्सा। और ये विवाद लीडर्स आर बॉर्न और मेड से उठाऊं तो मेड, बहुत सारा जो हम आगे बनते हैं, हमारे जीवन में क्या इन्फ्लुएंसेस हुए, कैसे टीचर मिले, कैसी संगत मिली। सत्संग में आप जाते हैं, आपके माता पिता दादी नानी जाती हैं, सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग, अच्छी संगत। तो उस संगत का बहुत फर्क पड़ता है। सो यस, दे आर बोर्न बेसिस योर संस्कार एंड प्रारब्ध, दैट इज योर पास्ट, एंड दे आर मेड बेसिस द influences in your life and how you choose to absorb that influence. आपके संग जो एक अनुभव हुआ, उसको अनुभव को आपने किस दृष्टिकोण से अपने अंतरात्मा में बैठाया पे निर्भर है कि आप पे आगे क्या प्रभाव वो अनुभव डालेगा। Have I answered your question? सर हाँ, मैं उसमें ऐड करूंगा, जैसे सर ने तो बिल्कुल सही बात कही, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मैं उसके लाइफ से इंसिडेंट बताता हूँ जहाँ पर को प्रूव होगा कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वैसे बताऊँ कि 7th में हम लोग आए तो क्रॉस कंट्री एक रेस होती है सैनिक स्कूल्स में, यू हैव टू रन फॉर 4 किलोमीटर्स 8 किलोमीटर्स इन द मॉर्निंग, उसका एक कंपटीशन भी होता है। इन द क्लास 7th अगर मान लीजिए 200 बच्चे थे जो क्रॉस कंट्री रेस में गए थे, तो मनोज पांडे की रैंक जो आई थी वो 120 के आसपास थी, मतलब नॉट गुड। तो 8th में उसको लगा नहीं यार, तो गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, मेरा तो कोई रैंक ही नहीं, मुझे तो टोकन भी नहीं मिला, तो आई वाज डिस्क्वालीफाइड। इन क्लास 8th में he stood second, क्लास 9 he stood first। तो आप क्या कहेंगे? कुछ बॉर्न था, कुछ इवॉल्व हुआ, इवोल्यूशन हैपेंड, तो इवोल्यूशन हुआ उसके साथ। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एकेडमिकली हम लोग 9th क्लास में, मुझे याद है संस्कृत एग्जाम में उसके फेल हो गया था, सबसे कम नंबर आ गए थे। कहा यार ऐसे कैसे होगा, अगली एग्जाम में मैं फर्स्ट आऊंगा, सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम में उसके संस्कृत में भी हाईएस्ट आए, तो मतलब कि ही टुक द चैलेंज लाइक दैट वे। ऐसे ही बताओ कि हम लोग के यहाँ एथलेटिक्स होता था, एथलेटिक्स जो इवेंट होता था ईयरली, इन दैट एथलेटिक्स इवेंट वो ही वाज ए गुड रनर फॉर 800 and 1500 मीटर्स। बियॉन्ड दैट क्या होता था कि एक पूल वॉल्ट भी उसमें आता था इवेंट। तो पूल वॉल्ट में आप लोग देखते होंगे कैसे लोग करते हैं, सर्वे बुक का एंड ऑल। तो हम लोग का तो नॉर्मल पास के उसे ही किया जाता था, जो स्टिक होती थी। तो हम लोग दोनों पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो हम लोग ना एनी हाउ कुछ कूद देते, चलो यार थोड़ा बहुत पार कर लेंगे तो हमारे हाउस को ना 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देयर वाज नो एम मैसेज कि हमको फर्स्ट आना है या टॉप करना है, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी। हम दोनों उसको कर देते। आई वॉज वेरी क्लोज फॉलोअर ऑफ हिम। मैं बताऊँ, अगर वो क्लास में फर्स्ट आता था ना, तो मैं भी 2nd 3rd जरूर आता था। हाँ, अगर वो क्रॉस कंट्री में भी मैंने क्लोजली चेज किया, ही वाज कमिंग फर्स्ट, आई यूज्ड टू कम 2nd 3rd। मैं बड़ा इंप्रूव कर गया उसके साथ रह के। और मैं जाते समय वहाँ पे कॉन्फिडेंस मेरा बहुत कम था। मैं सैनिक स्कूल जब मैं गया था तो आई वाज इन वेरी लो कॉन्फिडेंस।
कि मैं तो अगर 50 बच्चे, तो मैं हिंदी मीडियम से आया था, मुझे लगा कि मेरी तो 50वीं रैंक ही आएगी। आई वॉज वेरी श्योर। यस सर। हुआ क्या, उस दिन क्या हुआ, मेरे वहाँ फिर एक और बच्चा आ गया, 2 बच्चे और आ गए। मैं कहा लो अब तो 52वीं रैंक आएगी। तो हम डर जाते थे। लेकिन बताऊँ आपको, हार्ड वर्क का क्या सब्स्टिट्यूट होता है कि हम 7th क्लास में जब थे तो मैं अंधाधुंध खूब पढ़ा, मैंने कि बिना सोच के खूब पढ़ा। एक टेस्ट हुआ, मंथली टेस्ट, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास। लगा कि जानते क्या लगा, मामला ठीक है, उतना बुरा नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस आता है, वो इवोल्यूशन, और इसके साथ रह के मैंने कि मैं अच्छा परफॉर्म तभी कर पाया कि इसको फॉलो करके। मैं क्रॉस कंट्री बार मैं अच्छा दौड़ता था, अच्छा नहीं कर पाता तो इसने बताया ऐसे करो, हम लोग ट्रिक्स लगाते हैं, छोटे ट्रिक्स बताता, ऐसे करो। अगर आप उसके साथ रहते हैं तो यू आर बॉर्न टू विन, आपको विनर बना ही देगा उसकी संगत, वो मैंने पाया। Next question, please. My name is Adish Awasthi. I am from Chhatarpur district, sir. I am here in Bhopal for higher studies. My question is that like एक IAS officer होता है वो ex IAS officer हो जाता है, एक IPS होता है वो ex IPS हो जाता है, बट जो आर्मी मैन रहता है, आप कैप ब्रिगेडियर हैं, आप हमेशा ब्रिगेडियर रहेंगे, तो मतलब सर ये एटीट्यूड या पर्सनैलिटी का कोई फर्क होता है कि सिर्फ नाम हमेशा साथ रहता है? क्योंकि बाकी सब और पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्रेसिडेंट, बट वंस अ कैप्टन ऑलवेज अ कैप्टन, वंस अ मेजर ऑलवेज अ कैप्टन। सो सर आई वांट टू नो दैट। मतलब देखिए, ये मात्र भारत में ही नहीं पर दुनिया की ये प्रथा है कि फौजी का जो टाइटल होता है, डॉक्टर और फौजी का टाइटल, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो मेजर साहब हो, कर्नल साहब हो, जनरल साहब हो, ना ही कि सेवा निवृत्ति के बाद उसके साथ रहता है, मरणोपरांत भी उसके साथ रहता है। और ये बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है इंडिया में, ये किसी की मनमर्जी से नोचा हुआ नहीं है। और ये तो आप लोगों का प्रेम है, और जो ये इसके पीछे की भावनाएं है ना, वो ही उस आदमी को मोटिवेट करती हैं, और वो एटीट्यूड, और वो एक तरीके से, मैं 64 साल का हूं लेकिन मैं अपने आप को 64 इयर्स यंग समझता हूं। शारीरिक तकलीफें तो हैं लेकिन दिखेंगी नहीं आपको। अरे हैं तकलीफें, गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग तो होनी है, लाख किलोमीटर चल चुकी है, इंजन ठीक चलना चाहिए, इंजन ठीक चल रहा है। I hope indirectly I have answered your question. Yes, please. Next question. Yeah. One last question. It's the man in the uniform. Okay. No, we'll have one more, please. There's somebody who's raised his hand after the blue. That gentleman there. Any others? Oh, there are 2, 3. Can we have 2 more after these 3? We are running quite late. Okay. We can meet the author after this session in the foyer. बाहर आप लोग मिल सकते हैं। अभी समय की पाबंदी की वजह से मात्र हम 2 प्रश्न ले पाएंगे। प्लीज। सर, मेरा नाम हर्ष मिश्रा है। तो मेरा क्वेश्चन पवन सर से कि मनोज सर की आइडियोलॉजी आपकी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट कर रही है? एक्चुअली में मैं मनोज की आइडियोलॉजी पे ही चल रहा हूँ। मैं बताऊँ, मैं बहुत सच्ची घटना है। क्लास 9th में हम लोग थे, हमारी संस्कृत की मैम थी, बहुत बोरिंग संस्कृत पढ़ाती थी, आई पढ़ा के चली गई, बोरिंग सा चैप्टर था। तो मैं उसी दिन जानते क्या, क्लास में बैठा तो मैं कहा यार सब कुछ करूंगा, टीचर नहीं बनूंगा। मनोज पांडे ने तुरंत बोला, तड़ाक से बोला, तुरंत बोला, 1989 की बात है, कहा नहीं तुम टीचर बनोगे, बहुत अच्छा टीचर बनोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हार्डवर्क और डिसिप्लिन, सिंसियरिटी वाला पार्ट अच्छा है। और 99 में मैं टीचर से अपना करियर शुरू किया और आज भी टीचर हूँ। तो उसकी आइडियोलॉजी पे ही चल रहा हूँ। मैंने कि आई हैव रिटन ए बुक, आई रन ए स्कूल इन हिज नेम। तो मैंने कि मेरा लाइफ 80% क्या, मैं उसी को जी रहा हूँ, ऐसा समझिए, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन होता है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि पवन जी विद्या मंदिर के लखनऊ के हेड हैं। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Good evening, sir. My name is Animesh Aditya and I am an officer training SSB Academy. सर, जैसे आपने बताया कैप्टन मनोज पांडे मतलब उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया मुझे, और उनके बारे में मतलब मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। जैसे आपसे मिलने से पहले मतलब रचना बिष्ट मैम, उन्होंने वो भी काफ़ी कॉन्वर्सेशंस चलाती थी, उसका भी मैं हिस्सा रहा हूँ, और उनके काफ़ी जितने भी वॉर हीरोज हैं उनके पेरेंट्स से काफ़ी बातचीत करी है।
तो सर जैसे अभी हम लोग भी ऑफिस ट्रेनिंग अभी एकेडमी में ट्रेनिंग जा रहे हैं, तो आप कुछ उनके एनडीए के डेज के थ्रू वो कुछ आप इंसिडेंट शेयर कर सकें? क्योंकि जैसे अभी आपने एक क्रॉस कंट्री की बात भी करी थी, जैसे उन्होंने वो क्लास 7 में 120th उनकी पोजीशन आई थी। जहाँ तक मुझे याद है जो कॉन्वर्सेशंस में कि उन्होंने एनडीए में भी जाके जो रिकॉर्ड स्थापित किया था जो क्रॉस कंट्री का था। तो सर आप कुछ एनडीए डेज के कुछ एक्सेप्ट शेयर कर सके थे? हाँ श्योर। इवन जैसे एनडीए में भी गया है तो मैं तो उसके साथ एनडीए नहीं जा पाया था, बट थ्रू लेटर्स वी यूज्ड टू एक्सचेंज दोज थिंग्स। तो एक तो बात है कि सर वहाँ पर सिंगल फोर्ट कहाँ पे जाते थे लोग, तो सिंगल फोर्ट वहाँ से कुछ 20 किलोमीटर दूर था। वहाँ जाना और आना एक पनिशमेंट मिलता था, तो वो पनिशमेंट सबको फॉलो करना होता था। तो उसका जो टाइम लगता था, मान लीजिए कि वो दैट टाइम इज क्लोज टू 10 आवर्स, तो उसने वो काम जो है ना 4 घंटे में कर लिया था। तो इट वॉज वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर एवरीबॉडी कि यार इतने कम समय में कैसे कर गया। तो ये एक इवेंट उसका है। दूसरा था वहाँ पे नोवाइस बॉक्सिंग होती थी, तो नोवाइस बॉक्सिंग में Novices boxing is for boxing for people, children who don't know boxing. तो ही वॉज चैंपियन देयर कि वो वहाँ भी अच्छा किया था। एनडीए टाइम में उसको एक बार ये भी हुआ था कि उसको जॉन्डिस हो गया था, तो जॉन्डिस के साथ भी उसका मैंने खराब नहीं हुआ एंड ही गॉट ए गुड रैंक टू सेल थ्रू। इनफैक्ट एनडीए में जब वो गया है तो ट्रेनिंग हार्डशिप वो सब रही और हर चीज को अच्छे से फॉलो किया एंड ही वाज हैविंग बटालियन कैडेट कैप्टन था BCC. And now I will request you, since you have read about it and you've been with Rachna Mishra madam, you please read Mr. Pawan Kumar Mishra's book about his classmate and best friend. You will get a lot more from there. Thank you, ladies and gentlemen. I'm sorry because of the paucity of time. हाँ please. आप सब लोग यहाँ पे हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर मी एंड भोपाल इज दिस एमपी इज हार्ट ऑफ कंट्री इंडिया। तो ये एक मनोज पांडे का लास्ट विश था कि उसने एक लास्ट लेटर मुझे लिखा। दिस लेटर वाज रिटन टू मी ऑन 19th of June 1999. I received it on 30th of June. 3rd of July he got martyrdom. मतलब 4 दिन पहले। या 4 दिन पहले बस मैं इसको पाया था। और आप इसको ध्यान दिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। इस लेटर का जवाब मैंने उसको नहीं लिखा, पता नहीं क्यों। मैं इस लेटर को पढ़ता हूँ और इस लेटर को 19 जून को लिखा है डियर पवन। आप सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही टचिंग लेटर है। एक फौजी का लेटर देशवासियों के नाम है। 19th of June, डू रीड दिस लेटर टू एज मैनी एज पॉसिबल। ये इसने लिखा है। मैंने एक लेटर, इस लेटर को जनरल साहब को एक पढ़ाया था, तो उन्होंने कहा कि पवन ये लेटर लिखा गया है, लेटर कंप्लीट हुआ है और डू रीड दिस लेटर एज मैनी एज पॉसिबल के फॉन्ट्स छोटे हैं। फॉन्ट छोटे मतलब क्या हुआ, लेटर तो उसने लिखा, बाद में लगा कि नहीं ये लेटर तुम्हें नहीं जाना चाहिए, पूरे देश को जाना चाहिए। तो छोटी सी जगह में उसने छोटे फॉन्ट में ये लिख दिया कि शायद मैं मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन तुम इसको दुनिया को पहुंचाना। इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। विद ऑल योर परमिशन सर, मैं इस लेटर को पढ़ना चाहता हूँ। माइक पास रखिए, माइक पास रखिए। यस। डियर पवन, हाय, आई रिसीव्ड बोथ योर लेटर्स but could not reply the first one. Both of them reached me in midst of hot battle. It is really difficult to fight the enemy at this altitude. He is well inside bunkers and defenses, and we are in open. He has planned his move very well and has occupied most of the heights. Initially things were really bad for us and we suffered most of the casualties. But now situation is in control and more planned and deliberate attacks are going on. In last 1.5 months, I have seen the worst in probably Operation Vijay would account for the maximum casualties in the shortest time. I have myself brushed shoulders with death 4 times, but might be because of some good luck, I am still alive. Every day we are receiving the letters from all over countries saying the same sentence, just do it. It is really good to see that at time of need and crisis, our country gets united. I really don't know what would happen at the next moment,
But till now, I can assure you and all countrymen that certainly we would push back intruders at whatever cost we have to pay, maybe our lives. This operation has certainly given me some exposure which cannot be quantified, like leading men on the face of death, their fear, their loyalty, and the stress and strain, both physical and mental, which human being can take. But yeah, Indian Army, especially an infantry Jawan, is ultimate. He would do anything provided led properly. As I have always told you, that what infantry gives you cannot be told. But today, I am so proud of my decision of infantry that I cannot explain. Here weather is cold and snow has started melting down. If sun comes, then days are okay. But nights are cold to the temperature of -5 to -15 degrees centigrade. It all would get over, but the time limit cannot be told. And frankly speaking, no one can say for certainty about his going back. Just one request, guide my brother at this crucial moment of life about his future. Convey my best regard to all your friends for being so considerate to us. Do remain in touch. It gives lot of moral support. If I come back, we would have lot of things to talk about. But certainly this is going to be an everlasting experience for me. Yours, Manoj. Thank you. I previously said that this session would certainly give you goosebumps, and it was. But all of us are short of words. That letter was certainly made all of us emotional. And I believe this was all about the Kargil gallantry of late Captain Manoj Pandey ji PVC, and that was all about the hero of Metallic. Zordar taaliyan. पवन जी, संजय जी, मैं मंच पे राघव चंद्र सर को बुलाना चाहूँगा, and I would request him to felicitate the author for this session and the discussant for this wonderful session. This session sort of brought all of us together. A painting to the author, Pavan ji, a beautiful painting based on the tribal art made by Padma Shri Bhuribai ji. Beautiful painting. And a mug as well for our discussant Brigadier Sanjay Agrawal ji as a token of love and respect. Zordar taaliyan. Thank you so much, Sanjay ji, for carrying out this wonderful discussion.